Good morning. Good morning. Students, today we will be taking geometry and topic similarity. I will be just giving you brief intro of CET. CET Maths. There will be total 25 questions, algebra and geometry. So you can say 12 to 13 algebra, 12 to 13 geometry. So today we will be taking only geometry part. So if you consider geometry, there will be 12 or 13 questions. I am explaining you the technique of CET, and we have still 10, 13 participants are expecting many more to come. So I'm just writing, then I will explain once again. Geometry, I have to focus 5 topics: similarity, Pythagoras, circle, coordinate, and trigo. We don't have constructions, we don't have mensuration, right? Okay. So, two MCQs from each topic. 2 or 3 you can say, if 2 5 are 10, so 2 or 3 MCQs. Deleted portion not included. So students, this is basically what we are expecting in this particular. So this is my first slide. I will explain later. Now similarity. In similarity, we have to remember all the properties and all the formulae, and which I will be giving you in short. Area property. Okay, so there are 4 area properties which you need to remember. Then we have PPT and converse. Then in third point, I have similar triangles. Property and tests.
And last, very important, theorem of areas of similar triangles. So please, students, these are the 4 points which I'm going to explain, and then we'll solve few MCQs from textbook, few from the reference books. Yes. No. Takshak asking me, will there be HOT type of questions asked? For sure, no HOT. What is HOT, students? It's a higher order thinking. So most difficult type of questions. So I don't, I think this type of questions are not expected. Only it will check your concepts, basic formulae and calculation. There are two aspects. You should know all the properties and you should able to solve and find the answer. So concept and calculation, these are the 2 points that you have to work for next 20 days. That's all. Okay. So we have around 70. We are expecting few more. We will start by 9 next. Till that time, if you have doubts, any queries, you can just raise hand. I will unmute and ask you. Like Taksha, I'm here to, so we have students from SSC, we have students from ICSE, we have students from CBSE also. No worry. SSC students will be little bit comfortable because the same portion is there. For ICSE students, all basics are done, but the certain concepts are new. Certain concepts are new, and those concepts I will be explaining in today's classes. I will be focusing on geometry part, and Bhaktimis will focus on algebra part. Okay. So this is my first slide. So good morning, latecomers. Good morning. Welcome for this CET training. For next 1 month, we will be meeting every day, including Sunday, from 7:30 to 11. I will repeat. We will meet every day, including Sunday. Yes, is a question I have. Yes, Saurabh. Good morning. So, what is the difference in webinar and Zoom meeting? I will tell you. In Zoom meeting, we can interact. I can see your videos. Video on, video on. Now, your videos are not on. They're on, and I don't know. Mohit Shidore, good morning. So, students, what is very important is your focus. Very important. आपको जैसे कि नरेंद्र मोदी का मन की बातें प्रोग्राम आप सुनते हैं और नरेंद्र मोदी का दूरदर्शन पे लाइव टेलीकास्ट होता है, क्या है, यू कांट इंटरेक्ट विद नरेंद्र मोदी. वो तो सिर्फ बोलता है, आपको सिर्फ सुनता है. सेम इट विल बी अ लाइव टेलीकास्ट of Vakade sir and teachers. So please enjoy the session, and we will be sending the recorded lectures. So those who couldn't attend or किसी को नहीं समझा, you can see the recordings again and again to clear your concepts. It's dot 9:32. It's 9:32. Sir, will the 11th standard lecture will be stopped? No. 11th standard lectures will not be stopped, but we will reduce student. हम लोग थोड़ा कम करेंगे. से थोड़ा exams कम करेंगे, या last 1 week we will give you break, but otherwise we cannot give you entire 1 break. That's not possible, students. Very, very dangerous. Because मेरा aim है after 12th standard, I should get a right path, for my success. And this is very important.
ये 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम आई इंसिस्ट सबको देना है. अच्छा, लेट अस स्टार्ट. So I have already discussed few things with students. This is for latecomers. Latecomers, see, I'm Sadanand sir. For new students, please let us start with the first slide. CET Maths. I will talk about CET Maths, students. You all know, you must have read in circular, there will be 100 questions. 100 में 25 will be of mathematics. In mathematics, there will be algebra, geometry, all together 25 questions. All together 25 questions. When I say, so geometry में 12-13 होंगे, algebra में 12-13 होंगे. अभी geometry 12 or 13 questions will be asked. We have to focus 5 topics. You know, constructions and mensuration are deleted, so we don't have to concentrate on those topics. आपको ये 5 टॉपिक करने, सिमिलैरिटी, पाइथागोरस, सर्कल, कोऑर्डिनेट एंड ट्री. I will be taking first 3, similarity, Pythagoras, circle. Vivek sir will take coordinate and trigo. In every class, I will take today, for example, I will be doing similarity. I will explain all the properties of similarity and I will solve few sums. Okay. Then next class I will take Pythagoras and then next class I will take circle. No. This is Vivek Daivi. Yes. Vivek Daivi. Arya Pawar. Yes, Arya is right. Okay, Vivek sir. When I say Vivek sir, it's Vivek Daivi. Okay. So students, please, sir, do we need to take any notes? If you want, you can, students. Otherwise, we will be sending recording. आपका फोकस ये है, आपको ध्यान से मेरा लेक्चर सुनना है. Those students who can write simultaneously लिखो. Those students who cannot write and listen at the same time, sir, दो चीजें at a time possible नहीं है. Okay, forget, सिर्फ मेरा लेक्चर सुनो. I will be sending PDF and recording later. अच्छा, so I will repeat. 2 or 3 MCQs from each topic. Deleted portion not included. जो portion, for example, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी डिलीट हुआ है तो उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा. अपोलोनियस डिलीट हुआ है, उसके ऊपर क्वेश्चन. स्लोप इज डिलीटेड, क्वेश्चन नहीं आएगा. हाइट एंड डिस्टेंस डिलीटेड, नहीं आएगा. तो जो नहीं आएगा वो मेरे को, आपको मालूम है, जो पोर्शन डिलीटेड है फ्रॉम एसएससी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, सम्स विल नॉट बी आस्क्ड. नाउ कमिंग टू similarity, students, we studied similarity in SSC, we also studied in ICSE, we studied in CBSE, सब जगह पे. But अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, that is exam point of view, points which are very important from exam point of view. So please, I have given 4 points. Area property is basic proportionality theorem, similar triangle property and test, and theorem of areas of similar triangles. Now let me tell you students, एक मैं explain करता हूँ. से area properties. Area properties में क्या है ना, area properties. Okay, let us consider 2 triangles to clear your concept. As I said, CET will check your concepts. No rote learning नहीं चलेगा. Mugging नहीं चलेगा, mug up नहीं चलेगा. So ये देखो, suppose this is triangle ABC, and please don't ask me frequent questions. I will ask you certain things, then you can ask. तो ये 2 triangle है. If you see, ये ABC है, ये PQR है. In first triangle, if you see, this is the height of the triangle, और मैंने QR को extend किया, so this will be height of this triangle. Okay, so this is height PY, this is the height of first triangle AX. Students, I am going to basics. Okay, आपको ऐसा लगेगा सर क्या कर रहे हैं, ये तो बहुत easy है.
Then also I want you to understand. So what is area of triangle? Half base into height. So पहले triangle का base है BC और height है AX. What is area of triangle PQR? Half my base is QR into height PY. Students please remember ये मेरा base है not YR. ये सिर्फ height के लिए मैंने extend किया है. So if you divide area triangle ABC upon area triangle PQR, तो ऊपर आएगा half BC into AX and in the denominator half QR into BY. Half will get cancelled, students. So what will remain is area or ratio of area is base into height upon base into height. So I will repeat my first property of area A1 upon A2 is B1 H1 upon B2 H2. Property 1 says the ratio of areas of two triangles is base into height upon base into height. Remember students, these triangles are not similar, not congruent, not isosceles, not equilateral, कोई भी triangle. Okay, for all triangles, this is applicable for all triangles. अगर base same है, दो triangle का base same है, तो base cut हो जाएगा. Base same है, so ratio of area will be height upon height. Reason is equal bases. I will repeat. सर इसका मतलब क्या है? What do you mean by equal bases? तो ये देखो, अगर ये मेरा डायग्राम ऐसा है, ये मेरा एक ट्रायंगल है. अच्छा, ये दूसरा है, मैं भी इधर से ज्वाइन करेगा इधर और इसको इधर से इधर. अभी आप देख सकते हैं मैं जो बोल रहा है कॉमन बेस और इक्वल बेस. तो देखो ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी, उनका दोनों का बेस सेम है, ये बीसी. तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एरिया? द रेशियो ऑफ एरिया will be height upon height. So answer मेरा आएगा AB upon CD. Is it clear? Hope it is clear to all. Now, अगर basis same है तो height upon height. अगर height same है, अगर दो triangle का height same है, so ratio will be base upon base. So I will write equal height. Sir इसका मतलब क्या equal heights का? Let me explain it. See, ये दो ट्राइंगल आप देख सकते हैं, ये ट्राइंगल है, इसमें ये और एक मैंने लाइन ड्रॉ किया है ए बी सी डी. नाउ इफ यू सी, फर्स्ट ट्राइंगल है दैट इज ट्राइंगल एबीडी, तो बीडी बेस है. ट्राइंगल एसीडी, सीडी बेस है. बेस अलग अलग है बट दोनों वर्टेक्स कॉमन है. कॉमन वर्टेक्स. कॉमन वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? कॉमन वर्टेक्स का मतलब होता है कि सेम हाइट, ये इधर से जो हाइट आएगा दोनों का सेम होगा. तो प्लीज रिमेंबर दिस वेरी वेल कि when two triangles have a common vertex, when two triangles have a common vertex and bases are on the same line, then they have equal height. So ratio of area will be based upon basis. Very important for MCQ. आपको एग्जाम में ये पूछेंगे, सेम डायग्राम होगा, आपको पूछेंगे व्हाट इज एरिया ट्रायंगल एबीडी अपॉन एरिया ट्रायंगल एसीडी. आपको ये देखना है, अरे एबीडी और एसीडी का वर्टेक्स सेम है तो हाइट विल बी सेम. सो रेशियो विल बी बेस्ड अपॉन base. So BD upon DC. Is it? अगर पूछेंगे ABD upon ABC, students, अगर है ABD upon ABC, so please remember ABC. What is the base? BC. And so answer आएगा BD upon BC. नहीं समझ रहा है? So I will repeat once again. Okay.
एंड प्लीज रिमेंबर द लास्ट प्रॉपर्टी, अगर बेस और हाइट दोनों सेम है, रेशियो ऑफ एरिया विल बी 1, equal bases and heights. So students, this is my first point. This is area properties. मेरे को लगता है सबको एरिया प्रॉपर्टीज में कंफ्यूजन नहीं होगा. सर ये जो एरिया प्रॉपर्टीज है कभी यूज करेंगे? फॉर ऑल ट्राइंगल्स. ये देखो मैंने इधर दिया है, फॉर ऑल ट्राइंगल्स, नॉट नेसेसरी चैप्टर सिमिलैरिटी है तो सिमिलर ट्राइंगल यूज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. यस, तो ये जो प्रॉपर्टीज है हमें सबके लिए यूज करेगा. आई विल यूज फॉर ऑल द टाइप ऑफ ट्राइंगल्स. 4 प्रॉपर्टी. A1 upon A2 is base into height upon base into height. Base सेम होगा height upon height, height सेम है base upon base, दोनों सेम है 1. अभी इक्वल हाइट में मैंने आपको ये एक ट्रिक बोला था कि when two triangles have a common vertex, they have equal heights. और भी एक मेरा नोट है कि when two triangles lie between parallel lines, अगर ये पैरेलल लाइंस है, इमेजिन करो ये दो लाइंस पैरेलल है और ये एक ट्रायंगल है. यू कैन सेंड आंसर्स इन चैट बॉक्स ऑफ कोर्स. अगर जब भी मैं बोलेगा तभी, नॉट ऑलवेज, नहीं तो मेरे को चैट देखते देखते गड़बड़ हो जाएगा. ये है एलिमेंट ट्रायंगल स्टूडेंट्स एंड ये है एबीसी. एंड इफ आई वांट व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट अपॉन area of triangle ABC. I want you to send in chat box. तब तक मैं देखता हूँ. Okay, very good. Kargilad, not B1 upon B2 Ansh. I want answer. Arya Pawar correct. Correct. Tushar correct. Shalini correct. Kshitij wrong. I don't want it. Vedant Raurane wrong. Yes. Kshitij. Yes. Surabhi Thakur, I won't answer. Yes. Majority abhi MN upon BC, right? So please don't stop. MN upon BC. So students, MN upon BC now stop. अच्छा, okay. अभी बंद करो. किसी ने बोला था सर H1 upon H2 नहीं चलेगा. अरे H1 upon H2 कैसे? लाइन्स पैरेलल है तो हाइट इक्वल होगा. So area will be base upon base. So answer will be MN upon BC. So you have to remember, please, दो ट्रिक आपको याद रखना है. I will repeat. In area properties, आपको 4 प्रॉपर्टीज याद रखने हैं. रेशियो ऑफ एरिया एक 4 प्रॉपर्टीज, बेस into height upon base into height. बेस सेम रहेगा हाइट अपॉन हाइट, हाइट सेम रहेगी बेस अपॉन बेस, दोनों सेम है तो 1. दो ट्रिक बोला. दो ट्रिक क्या बोला? इफ टू ट्रायंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स, सेम हाइट, सो एरिया विल बी बेस अपॉन बेस. इफ टू ट्रायंगल्स lie between parallel lines, they have equal heights. Clear? Hope this is very clear to you. I will just check your what you have understood with one basic sum. Yes. Soham Shinde, thank you. I will clear your concept by one basic sum. देखते हैं किसको आता है. मेरे साथ आपको सिर्फ चैट बॉक्स में आंसर मेरे को बोलना है. एंड जब भी मैं स्टॉप बोलेगा तो स्टॉप करना है, बिकॉज नहीं तो बाद में गड़बड़ हो जाएगी मेरे को. I will be, yes. ये मेरा डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है स्टूडेंट्स. ये एक बड़ा ट्रायंगल है जिसका नाम है, मैं देगा PQR, और ये उसका हाइट है, और ये है A, ये उसका AQR दूसरा ट्रायंगल है. अच्छा स्टूडेंट, अभी आपको बोलना है व्हाट इज एरिया ट्रायंगल AQR अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR. यू कैन सेंड इन चैट बॉक्स जब तक मैं बोलेगा. yes. Wrong. Vedant wrong. Gargi no, Gargi wrong.
Sachi correct. Wrong. Ansh correct. No. Kshitij wrong. Eva, yes. Hi, Vedant Shelar, no. You have written H upon H, but you should write proper answer. Yes. Arya correct. Takshak correct. Harsh correct. Okay. Yash Parab. Ruchira correct. Yes. Stop. तो स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं, यू विल मूव योर फिंगर AQR, ये AQR बोले तो ये वाला ट्रायंगल है AQR। उसके बाद PQR, ये वाला ट्रायंगल है। आपको पता चलेगा अरे बेस सेम है, बेस सेम है, तो एरिया विल बी हाइट अपॉन हाइट। तो पहले का हाइट है AY, दूसरे का हाइट है PX, so आंसर विल बी AY अपॉन PX। करेक्ट, मेजॉरिटी लोगों ने AY अपॉन PX बोला था, किसी ने हाइट लिखा था, वैसे नहीं चलेगा ना ना। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर है, व्हाट इज एरिया ट्रायंगल PXQ अपॉन एरिया ट्रायंगल PXR। स्टूडेंट्स ऐसे ही सब MCQ में आएंगे, आपको सोच के बोलना है। उसके ऊपर PXQ इधर है, वेट ट्राई मत करो जब। बराबर है। शालिनी करेक्ट, नहीं शालिनी रॉन्ग, प्रिंस रॉन्ग, करेक्ट, तुषार करेक्ट, यस, अथर्व बोलेकर करेक्ट, अनुजा रॉन्ग, तक्षक करेक्ट। अरे बाप रे, आई कांट सी एट अ टाइम, इतने लोग भेज रहे ना। यश परब करेक्ट, yes, but stop। आंसर विल बी, देखो PXQ ये बेस है, PXR ये बेस है, एंड सिंस दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, सो हाइट सेम होगा, सो रेशियो विल बी बेस अपॉन बेस, XQ अपॉन XR। ग्रेट। सो दिस इज द राइट वे ऑफ प्रोसीडिंग। और एक लास्ट सब मैं देता हूं, देखते हैं किसको आएगा ये वाला। एरिया ट्रायंगल AYQ upon area triangle PXR। इसको आया, he or she can send in chat। अभी एक भी नहीं आया यार। What is area triangle AYQ? Yes। Kaustubh Patnaik correct, Gargi Neeraja wrong, Maitri Devkar wrong, Purval correct, Maithili Parab correct, Takshak correct, Swaraj wrong। और कोई भेजो। साची करेक्ट, शुभ्रा श्रेया रॉन्ग, देन तुषार नाइक करेक्ट, आर्या करेक्ट। ओके, बस स्टॉप। अभी ये देखो, अभी स्टॉप करो। अच्छा ये देखो स्टूडेंट, कि आपको थोड़ा भेजा भी तो यूज करना पड़ेगा। सब मैं बोलेगा वैसा नहीं होता, भेजा यूज करना जरूरी है। अभी जो मेरे ट्राइंगल है देखो, AYQ मतलब ये AYQ, और PXR ये। सो स्टूडेंट्स बेस भी सेम नहीं है, हाइट भी सेम नहीं है, तो मेरा प्रॉपर्टी नंबर 1 होगा, दैट इज बेस इनटू हाइट अपॉन बेस इनटू हाइट। इज दैट क्लियर? सो व्हाट विल बी द आंसर? तो AYQ का बेस YQ एंड हाइट AY upon PXR का base XR and height PX। I hope the topic is very clear, because इसके ऊपर एक सम guaranteed आएगा, बाद में मैं भेजने भी वाला है आपको। तो now BPT and converse, my next is BPT and converse। तो BPT and converse में क्या है देखो, ओके, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। स्टूडेंट्स ये देखो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, शॉर्ट फॉर्म होता है BPT।
बीपीटी क्या बोलता है? बीपीटी सेज इन अ triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, then it divides the other two sides in the same ratio. We studied in SSC, we studied in ICSE also. So if lines are parallel, ratios are equal. मैंने आपको ट्रिक बोला था, जो पैरेलल लाइन है उसके सामने वाला पॉइंट ए, सो स्टार्ट फ्रॉम ए, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम ए, तो आएगा ax अपॉन एक्स बी, ay अपॉन वाई। तो ax अपॉन एक्स बी is equal to ay upon y. This is called basic proportionality theorem. आपको याद क्या रखना है? If lines are parallel, ratios are equal. Of course, the converse क्या बोलेगा? उल्टा. If ratios are equal, lines are parallel. बराबर है? So BPT कभी यूज करेंगे? When we will use BPT? When lines are parallel. अभी सर इसके ऊपर तो क्या आएगा? इसके ऊपर एकदम सिंपल क्वेश्चन आएगा, जैसे कि मैं एक बार आपको बोलता हूँ कैसे आएगा। इट विल बी लाइक दिस। अगर ये बोला है ये 3 है, ये 8 है, अगर ये 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y सी क्वेश्चन मार्क। तो मैं लिखेगा, ये फॉर्मूला है x अपॉन एक्स बी ay अपॉन वाई सी। सो मैं लिखेगा 3 अपॉन 8 इज 5 अपॉन वाई सी। तो 3yc 8 5 are 40, तो yc will be 40 upon 3. Is it clear? सबको समझा बीपीटी में क्या आएगा? ये सिंपल बीपीटी देख रहे हैं आप। बीपीटी में ये भी तो हो सकता है कि ऐसा भी बीपीटी आएगा कि ये मेरा फॉर्मूला, इसमें आपको मेरे को बोलना है कि बीपीटी का फॉर्मूला क्या आएगा। आई वॉन्ट यू टू सेंड इन चैट बॉक्स। अगर ये लाइंस पैरेलल है तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम क्यू, चैट बॉक्स में आई विल वेट। यस, सेंड बीपीटी का फॉर्मूला करेक्ट। तुषार नाइक फर्स्ट, आदित्य करेक्ट, नो 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 आदित्य रॉन्ग, तक्षक करेक्ट करेक्ट करेक्ट। प्लस नहीं है, किसी ने प्लस डाला है, इक्वल टू होना चाहिए। कृपा गांगुली बोलो, कृपा गांगुली गांगुली को कुछ हैंड रेज किया, ओके नो प्रॉब्लम। बस स्टॉप 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 स्टॉप। व्हेन आई से स्टॉप यू शुड नॉट सेंड, बिकॉज़ आई कांट रीड, इतने आंसर्स में नहीं बोल सकता। सो आई विल राइट QL upon LP, QM upon MR. Okay, clear. So I will repeat. I'm just clearing your concept, students. वापस एक बार, ये मेरा सेकंड हो गया, BPT and converse. BPT, when to use BPT? When lines are parallel. When to use converse? When ratios are equal and we have to prove lines are parallel. Okay? So yes, yes, yes. Bas, Anaga bas, abhi bas. Now students, second last, similar triangle property and test. इसमें मैंने क्या हम लोग ने देखा है, सिमिलर ट्राइंगल्स। मैंने बोला था सिमिलर ट्राइंगल का अभी कंसेप्ट आएगा। सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है? सिमिलर ट्राइंगल्स, यू नो, triangles which have same shape but different measurement. शेप सेम होता है। अभी देखो इसका शेप और इसका शेप मैंने सेम निकाला है, लेकिन मेजरमेंट अलग है। तो आई विल राइट इफ दे आर सिमिलर, सेम शेप होता है। आई गिव यू एग्जांपल, मॉडल ऑफ अ कार एंड एक्चुअल कार। ट्रक का टायर, स्कूटर का टायर, एक्सेल साइज टी शर्ट एंड XXL size t-shirt, और 7 नंबर के शूज, 10 नंबर के शूज, all are the examples of similar figure. Now, similar triangles, when triangles are similar, triangle ABC is similar to triangle PQR. This is called as correspondence. Order is very important.
इफ यू राइट रॉन्ग ऑर्डर्स तो इसका मतलब है ए बी और पी क्यू का रेशियो सेम होगा, ए बी अपॉन पी क्यू आपको चेक करना है फर्स्ट सेकंड, देन बीसी और क्यू आर का रेशियो सेम होगा, सो बीसी अपॉन क्यू आर एंड एसी अपॉन पी आर, corresponding sides of similar triangles और corresponding parts of similar triangles, कुछ भी। और अगर एंगल बोलेंगे तो एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ। प्लीज रिमेम्बर, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आर बोलेंगे तो इट इज फॉल्स। आपको ऑर्डर चेक करना है, फर्स्ट विद फर्स्ट, सेकंड विद सेकंड, थर्ड विद थर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज रिमेम्बर, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। When two triangles are similar, corresponding angles are congruent and corresponding sides are in ratio. तो आपको अगर चेक करना है ट्रायंगल सिमिलर है क्या, तो आपको रेशियो चेक करना पड़ेगा और एंगल्स चेक करने पड़ेंगे, बराबर है। तो सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए, प्रूव ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए मेरे पास टेस्ट होता है AA angle, AAA है but I will not use, SSS and SAS. अच्छा, what is AA test? When two angles of one triangle are congruent with two angles of another, then it is AA test. When three angles of one triangle are congruent with three angles of another, then it is AAA. Students, please remember, हम लोग AAA तो यूज करने ही वाले नहीं है, because you all know, yes, but you all know कि when two angles are equal, तीसरा तो equal होने ही वाला है, तो ये मैं यूज ही नहीं करेगा। अच्छा, SSS side side side, when three sides of one triangle and three sides of another triangle are in ratio, are in proportion, इसका मतलब अगर ये बोला मैं 3 4 5 6 8 10, अभी रेशियो देखो, 1 3 2s are 4 2s are 5 2s are, रेशियो 1:2 है, so they are similar by axis. And what is SAS? टू साइड्स का रेशियो होता है एंड बीच वाला एंगल इक्वल होता है। आई विल रिपीट, two sides of one triangle are congruent with two sides of another triangle, और उसके बीच वाला जो included angle है that is equal, then it is called as SAS. Prince, raised hand. Prince, I just saw your message. Yes, congruence is not included here because ये अभी वो congruence के सब नहीं आने वाले, so I'm not going to focus here. Later, if you have doubt, you can ask me. So, students, please, last point I will discuss. ये देखो कि मैंने क्या किया, सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी एंड टेस्ट। सिमिलर ट्राइंगल का प्रॉपर्टी क्या बोलता है? When two triangles are similar, angles are corresponding, angles are equal. What do you mean by corresponding, sir? Order. First triangle with first, second with second, and third with third. And sides are in ratio. Sides are in proportion. Yes. So, Prince, there are how many tests in similarity? Similarity means 15 tests. AA, SSS, and SAS. Okay. तो सिमिलर प्रूव करने के लिए टेस्ट और सिमिलर दिया है तो प्रॉपर्टी। अभी लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, theorem of areas of similar triangles. So let me explain you. But before that, I will just check कि आपको मेरे को टेस्ट बोलना है ट्राइंगल्स को सिमिलर कैसे होगा। अगर मैं बोलेगा ये ट्राइंगल है, ओके, ये देखो DEF ट्राइंगल है और ये XY पैरेलल है, तो एंगल XDY congruent to, sorry, similar to triangle क्या आएगा? I want in chat box.
x dy. Not test. I don't want test. Wrong, wrong, wrong. Takshak wrong. I don't want test. Wrong, wrong, wrong. जिसने डी से चालू किया है वो रॉन्ग, रॉन्ग, रॉन्ग. बाकी करेक्ट. विलीन कर, अंश करेक्ट, तक्षक करेक्ट, मिहिका करेक्ट, 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 करेक्ट. अभी अगर आप एक्स डी वाई का सिमिलर डीईएफ लिखा तो रॉन्ग. डीईएफ इज रॉन्ग. Why DEF is stop sending answers. Why DEF is wrong, student? Because मैंने बोला है x dy तो x एंगल e के साथ इक्वल है. So I will start with e. उसके बाद d और d कॉमन है, so e d. और उसके बाद f because y एंगल f के साथ. So आपको जो ये ऑर्डर है, you have to follow the same order on my right hand side. Please remember this very well. अच्छा, और एक देता हूं. यही वाले क्वेश्चंस आएंगे हमको. We are expecting. ये ट्रपेजियम है स्टूडेंट्स. अच्छा, अगर मैं बोलेगा ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल, तो AOB का आंसर क्या? BOC रॉन्ग. AOB करेक्ट, करेक्ट. आर्या करेक्ट, तनिष्क करेक्ट, वेदांत यस, करेक्ट, 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 करेक्ट. सी AOB बोला तो नॉट डी. डी से चालू करने वाले सब रॉन्ग है. सी से चालू करना चाहिए. स्टूडेंट्स ये देखो, मैंने बोला है ट्रायंगल AOB, ये वाला ट्रायंगल है. बस स्टॉप स्टॉप. मेरा आंसर COD आएगा और DOC नहीं आएगा. व्हाई नॉट DOC, वो भी समझना है. अभी ये पहला A है. अभी A एंगल और C एंगल इक्वल है बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स. So I should start with C. उसके बाद O and O vertically opposite angle और उसके बाद D. Please remember this very well. This will test in your MCQ. अच्छा, so they will just give you triangle AOB similar to dash by AA test. तो आपको अगर DOC लिखा तो गया काम से. अच्छा, so please remember, ये सब हम लोग आगे करने वाले हैं. अभी लास्ट है मेरा, that is theorem of areas of similar triangles. See, theorem of areas of similar triangles. See, this is very important. This is very important. इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ऐसे बोलेंगे तो ये चार में से तीन, एक चार के ऊपर चार क्वेश्चन नहीं आ सकते, लेकिन हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर चार में से तीन तो क्वेश्चन भी आएंगे सिमिलैरिटी के ऊपर. प्लीज रिमेंबर एंड टेक माय वर्ड्स. अभी ये क्या बोलता है? दिस सेज व्हेन ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR. When two triangles are similar, then area triangle ABC upon area triangle PQR is equal to AB upon PQ the whole square. This says when two triangles are similar, the ratio of area is equal to square of the ratio of the corresponding sides. I will repeat. When triangles are similar, the ratio of area is square of corresponding sides. So I can write ratio of area is S1 upon S2 square, and not only square of corresponding sides, also square of corresponding heights, square of corresponding medians. Because ऐसा भी क्वेश्चन पूछेंगे
दो ट्राइंगल सिमिलर है और हाइट का रेशियो 3:4 है, तो एरिया का रेशियो क्या होगा? स्क्वायर करो, 9:6. प्लीज रिमेंबर दिस वेरी वेल. ये देखिए, यस, ओके. So please remember this very well. Remember this very well. Okay, when two triangles are similar, the ratio of their area is square of the corresponding sides. Not only corresponding sides, but corresponding height, corresponding median, corresponding angle bisector. Please remember this very well. I will just give you brief intro ki what we did in last part. Ki theorem of areas of similar triangles means when triangles are similar, the ratio of area is square of corresponding sides. अच्छा, अभी मेरा problem चालू होगा. Now it will start. Yes, now it will start. कि how you will decide, sir, when we should use area properties and when we should use theorem of areas of similar triangle. Sir, कभी BPT use करेंगे, कभी टेस्ट use करेंगे. Very easy. I will just give you in short. ध्यान रहे. If I want ratio of areas, listen carefully. If I want ratio of areas and similar triangles are given, then I will use special properties. Theorem of areas. Ratio of area is square of corresponding. But if areas are given, triangles are not similar, and if I want ratio of areas, I will use base and height properties. If lines are parallel, I will use BPT. To prove lines are parallel, I will use converse. To prove triangles are similar, I will use test. If similar triangles and sides are given, I will use property, ratios are equal. And if similar triangle and areas are given, I will use special property, that is the ratio of area is square of corresponding sides. Okay, let us summarize what I discussed before I start with actual sum. Let us summarize. Number one, okay, similar triangles and areas are given, then I will go for the special property, theorem of areas of similar triangles. Theorem of areas, that is A1 upon A2 is S1 upon S2 ka square. But triangles not similar, and ratio of area is asked, तो मैं क्या करेगा? Similar नहीं है, but I want ratio of areas. Then I will use A1 upon A2 is base into height upon base into height. Okay. Now, if lines are parallel, तो मैं क्या यूज करेगा? I will use BPT. Correct. Somebody rightly said. To prove lines are parallel, I will use what? I will use, yes, someone is also consistently sending converse of BPT, right? Now, if to prove triangle similar, अगर मेरे को similar prove करना है, ये अगर इतना आप याद भी रखते क्या कभी यूज करने का, सिमिलर प्रूव करना है तो टेस्ट. एंड एट लास्ट, if similar triangles and sides are given, अगर similar triangle और side क्या है, then I will not use special property. I will use corresponding sides of similar triangle.
ओके, सो प्लीज 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 ये सब अच्छे से, यस CPST करेक्ट। सो प्लीज, स्टूडेंट्स को क्या कंफ्यूजन होता है, विल टेल यू। स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है, सर कभी स्क्वायर करेंगे और कभी स्क्वायर नहीं करेंगे। तो आंसर इज वेरी सिंपल, अगर सिमिलर ट्राइंगल है देन ओनली आई विल स्क्वायर करस्पॉन्डिंग साइड, हाइट, मीडियन, एंगल। अगर सिमिलर नहीं है then I will take ratio of area is base into height upon base into height. Hope everything is clear. Now I will just ask someone कि अगर किसी को कुछ डाउट है तो you can raise hand, I will unmute. Otherwise I will proceed for the MCQs solving. अच्छा, किसी को तो कुछ तो लास्ट वन तुषार नाइक, लास्ट वन। ओके ओके, लास्ट वन मैंने क्या बोला कि इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड साइड्स आर गिवन, मतलब सिमिलर ट्रायंगल है लेकिन एरिया नहीं दिया है, तो आई विल जस्ट राइट साइड्स आर इन रेशियो। मैं ये यूज करेगा, ये देखो ये देखो ये देखो, ये यूज करेगा। अगर ये क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन है, अगर ये इसमें बोला ये AB 5 है, ये 12 है और ये 6 है, फाइंड OC। तो तुषार अभी ये क्वेश्चन में मैं ट्राइंगल सिमिलर और साइड फाइंड आउट करने का तो मैं एरिया का कुछ लेना देना ही नहीं है। मैं लिखेगा AO अपॉन CO, AB अपॉन CD, AO अपॉन CO, AB अपॉन CD, राइट। अच्छा, और किसी को कुछ पूछना है? ओके ओके, अंडरस्टूड, ओके अंडरस्टूड। Now students, let me solve few sums I have, I will share with you. अभी लिखने की इतनी जरूरत नहीं है, ओनली बिकॉज ये बाद में मैं भेजने वाला है, आई विल बी सेंडिंग एकदम फटाफट। मैंने थोड़ा डोंट सी माय हैंडराइटिंग नॉट गुड, टाइप नहीं किया है। आपको चैट बॉक्स में जब भी मैं बोलूं तभी चैट बॉक्स में लिखना है, नॉट बिफोर दैट एट ऑल, बिकॉज वेरी डिफिकल्ट, फटाफट फटाफट स्क्रॉल होता। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो आप, जस्ट सी फर्स्ट वाला। ये ट्राइंगल एबीसी है, इसमें एडी इज द मीडियन। आई वांट एरिया ट्राइंगल एबीडी अपॉन एरिया ट्राइंगल एसीडी, सेंडिंग चैट बॉक्स। रॉन्ग तक्षक, शुभ्रा श्रेया रॉन्ग, श्रावणी करेक्ट, वेदांत शेलर करेक्ट, साची रॉन्ग, प्रिंस रॉन्ग, तनिष्क रॉन्ग, अनुजा करेक्ट, मनस्वी गार्गी करेक्ट, जितेश रॉन्ग, और इसके पास ज्यादा मतलब इशिका करेक्ट, अब तुषार रॉन्ग, यश परब करेक्ट, आयुषी रॉन्ग, आयुषी यादव रॉन्ग, कृतिका कदम करेक्ट, आर्य देशमुख करेक्ट, स्वराज रॉन्ग। Students answer will be one, one. I will be using fourth property. I will tell you why fourth, because दोनों ट्राइंगल का कॉमन वर्टेक्स है तो हाइट सेम, एंड मीडियन का मतलब BD और DC बेस की सेम, सेम बेस सेम हाइट, सो रेशियो विल बी 1। तो फर्स्ट सम इज क्लियर। सेकंड सम, ये ट्राइंगल है, एक क्वाड्रिलैटरल है। अच्छा, अब ये देखो ABC ट्राइंगल में BC बेस और BDC में BC बेस, तो दोनों का बेस सेम है। तो अगर बेस सेम है तो रेशियो ऑफ एरिया आएगा हाइट अपॉन हाइट। तो मैं इधर ही लिखता हूं, एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल BDC। आप स्क्रिबलिंग कर सकते हैं, इज 4/6, और एबीसी का एरिया 200 दिया है, तो सब्स्टिट्यूट करके मेरे को आंसर भेजो जो मैंने पूछा है। नो फिर आई डोंट वांट रेशियो स्टूडेंट्स, मैंने को एबीसी का भी दिया है 200, सो 200 अपॉन एरिया ट्राइंगल BDC इज 2/3।
तो मेरे को नो 300 इज नॉट करेक्ट आंसर, 300 इज नॉट करेक्ट आंसर। रीड क्वेश्चन केयरफुली। मेरे को पूछा एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल, तो 300 और 200 को ऐड करना पड़ेगा। प्लीज रिमेम्बर दिस वेरी वेल। टीटी का प्रॉब्लम बोलता हूँ, क्वेश्चंस ट्रिकी होंगे। यू नीड टू रीड क्वेश्चंस केयरफुली। कभी भूलेंगे फाइंड ट्रू स्टेटमेंट, कभी बोलते फाइंड फॉल्स स्टेटमेंट। तो आपको अच्छे से सुनना है और बाद में आपको आंसर लिखना है। तो 500 इज द करेक्ट आंसर। टू पार्टिसिपेंट्स रेज हैंड। सिद्धि खानोलकर, प्लीज इफ यू वांट टू इंटरैक्ट, सिद्धि खानोलकर अलाउड टू टॉक। बोल सिद्धि खानोलकर, बोलायचंय? यस और नो? नो, ओके ओके। अगर बोल, मेरा थर्ड क्वेश्चन मैंने किया था इसलिए मैं थर्ड नहीं करेगा। आई विल नॉट सॉल्व। प्लीज प्लीज हैंड रेज के लिए मैं बाद में आपको देता हूँ टाइम। यस, अभी चैट में साफ। कैन यू एक्सप्लेन फर्स्ट क्वेश्चन? अनगा का है। ओके ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। यस अनगा, लोअर हैंड। आई विल आस्क, आई विल एक्सप्लेन। मैंने क्या बोला था कि एरिया ट्रायंगल एबीडी और एरिया ट्रायंगल एसीडी का रेशियो निकालना है मेरे को, बराबर है? अभी मैंने बोला था ये मीडियन है। मीडियन का मतलब जो डी मिड पॉइंट है, तो अन्यथा बीडी और डीसी सेम होगा, तो बेस सेम है। और कॉमन वर्टेक्स का मतलब हाइट भी सेम होगा, सो सेम बेस सेम हाइट, तो रेशियो विल बी 1। इज दैट क्लियर अनगा? थर्ड मैंने ऑलरेडी किया था, अभी मैंने जब भी आपको चेक किया था। फोर्थ करेंगे। ये देखो, two lines are parallel. Now please don't raise hand now till I complete 10 sums. Two lines are parallel. What is area triangle ABC upon BDC? Chat में भेजो। आर्या पवार करेक्ट, तक्षक करेक्ट, करेक्ट करेक्ट, साची करेक्ट, वेदांत करेक्ट, वेदांत शेलार करेक्ट, तुषार रॉन्ग, गार्गी करेक्ट, प्रिंस करेक्ट, करेक्ट करेक्ट, अंश करेक्ट, यादव करेक्ट, हर्षिया, रुचिरा करेक्ट, आदित्य रॉन्ग, आदित्य गौड़ रॉन्ग, Felisa correct, Surabhi correct, correct. So answer is 1. Answer is 1. Very good. आंसर 1 क्यों है वो भी समझना जरूरी है। एबीसी ये ट्रायंगल है और बीडीसी ये दूसरा ट्रायंगल है, तो दोनों का बेस तो सेम है। एंड सिंस लाइन दे लाई बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो हाइट भी सेम होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 याद है? वेरी गुड। सो आंसर इज 1। अच्छा, अभी फिफ्थ सम तो मैंने ऑलरेडी किया है, वापस बोलता है कि ये पैरेलल है, तो ट्रायंगल AXY विल बी सिमिलर टू ABC, बराबर है? तो इसको मैंने AX अपॉन AB इज इक्वल टू क्या आएगा? XY अपॉन BC, बराबर है? सेकंड थर्ड ये भी आ सकता है इसमें से एक ऑप्शन। और AY अपॉन क्या आएगा? AY अपॉन क्या आएगा? चैट बॉक्स में भेजो। आर्गी करेक्ट 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 करेक्ट, नॉट ओनली सी, किसी ने माहिती नहीं, फक्त सी लिहिले, करेक्ट। अभी सिक्स्थ को आपको लिखना है। सिक्स सम में मैंने सी द क्वेश्चन, ये दो ट्रायंगल है, इसमें ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल सिमिलर है, तो क्वेश्चन है CAB किसके साथ सिमिलर होगा? CAB किसके साथ सिमिलर होगा? आई एम वेटिंग। करेक्ट, आदित्य करेक्ट, रॉन्ग, प्रिंस रॉन्ग, गार्गी मोरे रॉन्ग, रॉन्ग, अनुजा करेक्ट, जितेश करेक्ट, मनस्वी करेक्ट, आविष्कार रॉन्ग, श्रेया शुभ्रा करेक्ट, प्रिंस करेक्ट, नो नो, रॉन्ग 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 रॉन्ग, अरे बाप रे। कनका, यस स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान दे दो, मेरा आंसर है
CDA। अभी ये देखो, ये जो बड़ा ट्राइंगल है और ये जो छोटा ट्राइंगल है, इसमें सी एंगल कॉमन है, तो दोनों का स्टार्टिंग सी से होगा। उसके बाद CAB CDA के साथ इक्वल है, तो CDA के करेक्ट ऑर्डर है। चेक करें, किसी को डाउट होगा तो। इसमें बहुत गड़बड़ हुआ था, दिया का रॉन्ग था। यस, किसी का हाथ ऊपर है। वेदांत शेलार बोला। वेदांत शेलार, डू यू हैव एनी क्वेरी? नहीं तो लोअर हैंड करो। वेदांत शेलार। सर एक्सप्लेन अगेन। ओके, नो प्रॉब्लम, एक्सप्लेन अगेन। ये देखो, मेरा क्वेश्चन था कि ये जो CAB है, तो आपने पहला सी एंगल है, तो ये जो बड़ा ट्राइंगल है, ये जो बड़ा ट्राइंगल है, और दूसरा वाला ये देखो, दूसरा वाला ये छोटा है। इसमें सी एंगल कॉमन है ना, तो दोनों का स्टार्टिंग सी से ही होना चाहिए। सेकंड पोजीशन पे CAB, ये वाला एंगल CDA के साथ इक्वल है, तो सेकंड पोजीशन पे D आएगा, तो बचा हुआ है। ओ क्लियर? इट कैन नॉट बी ADC। अच्छा, किसी का क्वेश्चन है सर व्हाई नॉट ADC? अभी सोचो, अगर CAB और ADC, तो पहला एंगल C और A के साथ इक्वल है क्या? नहीं, सो इट इज नॉट पॉसिबल। It cannot be ADC, Vedant. It cannot be ADC, Vedant Shelar, because C angle and A angle are not equal. C और C equal है। समझा? समझा समझा, ओके। सेवंथ वाला सम देखो, ट्राइंगल सिमिलर है, बाय विच टेस्ट? आपको चैट बॉक्स में भेजना है सेवंथ का आंसर। अक्षक करेक्ट, जितेश करेक्ट, करेक्ट। नो 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 नो, किसी ने ऐसे तनिष्का रॉन्ग, कारगिराव, काचीराव। रेस्ट आर करेक्ट, रेस्ट। बस स्टूडेंट्स, किसी ने AA बोला है, इट कैन नॉट बी AA। हाउ इट कैन बी AA? एक वर्टिकली अपोजिट है। नाउ यू कांट से सर ये अल्टरनेट है, लेकिन लाइन्स आर नॉट पैरेलल स्टूडेंट, सो यू कांट टेक अल्टरनेट। तो सर मैं क्या करेगा? सो रेशियो ले लो, AO और CO 4/6, 2 2s are 2 3s are, so ratio आया 2:3, 3 2s are 3 3s are, so AO upon CO का रेशियो और BO upon DO का रेशियो सेम आएगा। इज दैट क्लियर? So two ratios equal or vertically opposite, so which will be the test? SAS, very important and challenging question, because SAS का एक ही क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है, तो आ सकता है। अभी एट्थ वाला क्वेश्चन नंबर 8 देखो स्टूडेंट्स, क्या है कि एरिया ट्राइंगल ABO 26 दिया है, ABO 26 है, और COD फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर? अच्छा अच्छा अच्छा, बोलो, भाई मत करो। सबसे पहले ये दोनों को सिमिलर प्रूव करेगा, वर्टिकली अपोजिट अल्टरनेट, तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो लास्ट थ्योरम, स्पेशल प्रॉपर्टी, मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB upon area triangle COD is equal to, oh please give me 1 minute. Really sorry, मेरा चार्ज गया। So students, is 4/6 the whole square। अभी सीटी में आपको वर्किंग प्रेजेंटेशन को कुछ मायने नहीं, आपको फटाफट स्क्रिबलिंग करके सॉल्व करना है। अभी AOB का 26 है, तो मेरा आंसर आएगा 26/x
4/6 का 2 2s are 2 3s are reduce करो and tell me the answer. किसी का आया होगा आंसर? एक denominator, sir, denominator should be 8, right? Sui Joshi, please, which denominator you are talking? एक minute, huh? Sui Joshi, I will unmute you. हाँ, this, okay. Oh, sorry. ये 4/6 नहीं, इधर 4/8 है. Sorry, Zui. So 4 1s are 4 2s are. Sorry, really sorry. तो ये 1/2 का स्क्वायर हुआ. So 26/x is 1/4. So answer will be 104. Yes. Thank you. Next. 9th वाला समय AXB similar to what? Wait. I want answer in chat box. Yes. किसका भी नहीं आया अभी तक. Correct. Velisa correct. Wrong. Prince wrong. Anuja correct. Tanishka wrong. Gargi correct. Devi correct. Swaraj correct. Ruchira wrong. Takshak Vedant wrong. Kshitij Mirikar wrong. Okay, stop. अभी मैं बोलता हूँ. देखो, मैंने बोला AXB तो AYC आएगा. क्षितिज ने ACY बोला, वो रॉन्ग. बिकॉज A और A कॉमन है, उसके बाद एंगल X और एंगल Y 90 है. So order is very important, please. And what I'm trying to tell you कि order अगर गलत होता है, जैसे मैंने वेरी सिंपल एग्जांपल बोला था कि एक सिंपल एग्जांपल, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, सरनेम. अगर आपने फादर नेम और स्टूडेंट नेम को एक्सचेंज किया, द मीनिंग विल चेंज. द सेम ऑर्डर अगर इधर गलत हुआ, द मीनिंग विल चेंज. यस, बस इनफ. अभी मेरा 10th वाला क्वेश्चन देखो. 10th वाला. अच्छा, डोंट वरी स्टूडेंट्स, आई विल बी सेंडिंग दिस. अभी आई डोंट नो, हम लोग एक प्लान कर रहे हैं. 2 स्टूडेंट्स अभी अटेंड कर रहे हैं, उसके लिए एक अलग से ग्रुप बनाएंगे. मैं आज एक ग्रुप बना के उसका लिंक सब ग्रुप में पोस्ट करता हूँ. जिसको ज्वाइन करना है वो ग्रुप ज्वाइन करे, सो दैट वो ग्रुप में मैं सब PDF वगैरह शेयर, रिकॉर्डिंग वगैरह हम लोग शेयर करेंगे. ओके. अभी 10th वाला समय ट्रायंगल सिमिलर, प्लीज ध्यान दे दो. प्रॉपर्टी नंबर 4. और आई वांट रेशियो ऑफ एरिया. तो मेरे को स्क्वायर करा, अरे बोलने की जरूरत ही नहीं है. 2/3 का स्क्वायर होगा, तो 4/9. इधर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स है इशू, सर कभी स्क्वायर करने का, कभी नहीं करने का, वो नहीं समझता. तो आई टोल्ड यू, सिमिलर होगा तो स्क्वायर करो, सिमिलर नहीं होगा तो बेस इनटू हाइट का प्रॉपर्टी. नाउ 11th में तो ABC सिमिलर टू PQR. राइट द रिलेशन, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा. ओके. नहीं, ऐसा नहीं है, ये थोड़ा अलग गलत है. मैंने बोला क्वेश्चन में थोड़ा सा, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR एंड रेशियो ऑफ एरिया इज 1:1. तो रिलेशन क्या होगा ट्रायंगल में, आपको चैट बॉक्स में भेजना है. रॉन्ग, जितेश रॉन्ग. यश पर वर्ड इज नॉट करेक्ट, बट करेक्ट है. नो, मैथिली नॉट करेक्ट. तुषार not correct. Sachi not correct. Correct. Zui Joshi correct. Jitesh correct. Yash Parab correct. Prince wrong. Maithili Parab wrong. Kapadia not correct. Arwa. Arya Pawar not correct. Kaustu Patnaik not correct. Okay, let me tell you. क्या है
ट्राइंगल सिमिलर, अभी स्टॉप सेंडिंग, स्टॉप सेंडिंग। मैंने क्या बोला है, ट्राइंगल सिमिलर है, अच्छा, एंड रेशियो ऑफ एरिया इज 1:1. नाउ रेशियो ऑफ एरिया इज square of corresponding sides, so a1 upon a2 will be s1 upon s2 का square, so 1 upon 1 is s1 upon s2 का square, so ratio of side will be 1:1. So in short, sides are equal, so I can say triangles are congruent. Please remember कि अगर सिमिलर ट्राइंगल है और रेशियो ऑफ एरिया 1:1 है तो दे आर कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, तो आपको ऐसे कुछ ऑप्शन आ सकते हैं, थोड़ा सा इतना भी हाई फाई लेवल में आई डोंट एक्सपेक्ट, बट हम लोग थोड़े से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल ऑलवेज हेल्प यू। अभी 12 और 13, 12th वाला सब क्या बोलता है देखो, height दिया है 12 और 18, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया। सिमिलर ट्राइंगल है ऑफ कोर्स, सिमिलर ट्राइंगल, heights दिया है 12 and 18, so what is the ratio of their area? Send in chat box. Correct, Nikita Paue, first answer correct, Prince wrong, Sujesh correct, Arwa wrong, Sachi wrong, Maithili wrong, Subra wrong, Arya Pawar correct, Avishkar correct, Avishkar correct. Student answer is 4:9. Sir अभी ये कैसा 4:9 किधर, अभी दे देखो सिमिलर है ना, तो a1 upon a2 is 12 upon 18 square. मैंने आपको क्या बोला था कि पहले रिड्यूस करो, 6 2s are 6 3s are, so 2 upon 3 का स्क्वायर 4 upon 9 is the correct answer. किसी ने 144 upon 324 लिखा है, वो ऑप्शन होगा ही नहीं आपका, ओके, सो आप लटक जाएंगे, ओके। अथर्व बहुत क्लियर है। अभी ये वाला देखो 13th वाला, आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मैं कुछ नहीं बोलेगा, मैंने ऐसा किया इसके लिए, चलो करो। ओके 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 ओके, टिया का करेक्ट है, अरे करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अब ये तो मेजोरिटी का करेक्ट करेक्ट है। इसका मैंने बोला था आपको, अभी फॉर्मूला वगैरह लिखने का जरूरत नहीं, मेरे को स्क्रिबलिंग करना है। 5/3 4/x, 5x is 12, so x is 12/5, very good। अच्छा, areas of similar triangles दिया है, so a1 is given and a2 is given। एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, अगर साइड s1 और s2 लेंगे तो स्मॉलर का 12 दिया है सर, विच इज स्मॉलर, पहला वाला दूसरा वाला, एरिया देखो 225 81, तो पहला वाला बड़ा है दूसरा वाला छोटा है, तो s2 is 12, find s1, okay, so please try to solve this particular sum. It 225 upon 81 is x upon 12 the whole square। मेरा ट्रिक है, अगर दोनों एरिया दिया है तो स्क्वायर रूट ले लो, अगर दोनों साइड के हैं तो रिड्यूस करके स्क्वायर करो, तो इसको स्क्वायर रूट लेके सॉल्व करो फटाफट। आई गॉट आंसर आल्सो, आविष्कार का आया, सोहम शिंदे का आया, किसी का 400 आया, किसी का 80 आया, किसी का 90 आया, गॉड नोस क्या है करेक्ट। 15 upon 9 into 12, that is equal to x, okay, 3 3s are 3 4s are 15 upon 9 na into 12, 3 5s are, okay, so what is the answer, क्या क्या कुछ कुछ करेक्ट, क्या लोगों ने किया है मालूम नहीं मेरे को, किसी का 400 किसी का 90 या तो पहले का आंसर बोला होगा शायद से, क्या मालूम। तो आंसर क्या आने वाला है,
स्टूडेंट्स करेक्ट 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 करेक्ट, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। अभी देखो ये मैं भेजने वाला है आपको, ये आगे की 6-7 सब आपको करके लिए है। आई विल रिपीट, ये सेम वर्कशीट आई विल सेंड टुडे। आप घर पे एक बार वापस प्रैक्टिस करो, मेरा लेक्चर रिकॉर्डिंग देख, आई विल सेंड। अगर वो आपको देखने का है वो भी देख सकते हैं। बिफोर आई प्रोसीड टू समथिंग डिफरेंट, अभी मेरे पास 20 मिनट्स है। किसी को कुछ इंटरैक्शन करना है तो यू कैन रेज एंड आई विल अनम्यूट। बोलो, किसी को कुछ डाउट है जो जो मैंने पढ़ाया उसके बारे में? यस, राज बोलो। आई विल आस्क राज अलाउड टू टॉक। राज बोलो। Sir, are there any reductions in the syllabus? हाँ, रिडक्शन इन द सिलेबस मीन्स यस। अभी डू यू हैव द पीडीएफ? इसका पीडीएफ होगा आपके पास, बराबर है ना? Yes, sir. तो वो मैं आपको रिडक्शन बोलता है, राइट? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। प्लीज रिमेम्बर, मैंने इधर बोला था, ये देखो ये देखो ये देखो, फर्स्ट पेज ऑफ माय क्लास लेक्चर। मैंने ये बोला था स्टूडेंट्स को कि मेरे पास ज्योमेट्री का जो आपको पीडीएफ है उसमें सिर्फ आई हैव 5 टॉपिक्स, आई डोंट हैव कंस्ट्रक्शंस, आई डोंट हैव मेंसुरेशंस। ये 2 टॉपिक पूरे नहीं है, बराबर है? टोटली डिलीटेड। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी, I don't have angle bisector property and 3 parallel lines property, ये नहीं है। अच्छा, सेकेंड चैप्टर में I don't have exercise 2.2 that is Apollonius theorem, ओके? और सर्कल का बाद में बोलता हूँ। ये डिलीटेड पोर्शन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है, ओके? और किसी को इंटरेक्शन करना है, you can, no issues, ओके? तो लेट अस रिकैप। मैंने क्या, किसी को और है बोलो? तक्षक, यस, ओके, यूट्यूब पे अपलोड करें, ओके? ऐसा होता है क्या? अच्छा, सजेशन इज accepted, we will upload on YouTube, don't worry। अभी ये देखो, I will just start what we did from the first minute। सीटी का जो टेस्ट है उसमें मैथ्स में 25 क्वेश्चंस होंगे, which includes algebra and geometry both। तो ज्योमेट्री में अराउंड 12-13 आएंगे, अलजेब्रा में 12-13। तो मेरे पास 5 टॉपिक है, तो 5 2s are 10, तो 2 या 3 आएंगे हर एक टॉपिक के ऊपर। आज मैंने सिमिलैरिटी किया, तो सिमिलैरिटी के बारे में नोट 2 to 3, ओके? मैं सिमिलैरिटी पाइथागोरस सर्कल मैं करने वाला है, कोऑर्डिनेट त्रिको विवेक सर करेंगे मेरे साथ, ओके? ना सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी में मैंने क्या क्या बोला? एरिया प्रॉपर्टीज, एरिया प्रॉपर्टीज में मैंने क्या बोला था आपको कि रेशियो ऑफ एरिया इज बेस इनटू हाइट अपॉन बेस इनटू हाइट, राइट? ये देखो इधर मैंने बोला था। बाद में मैंने बोला था कि अगर बेस सेम है तो हाइट अपॉन हाइट सेम है, बेस अपॉन बेस दोनों सेम है तो 1/1। मैंने एक ट्रिक भी दिया इधर, क्या ट्रिक दिया था? इफ टू ट्रायंगल्स लाई बिटवीन पैरेलल लाइंस, heights are equal। if two triangles have a common vertex and base on the same line, heights are equal, बराबर है? उसके बाद ये 4 हो गया। देन बीपीटी एंड कन्वर्स, बीपीटी एंड कन्वर्स में मैंने क्या बोला था कि if lines are parallel, ratios are equal। to two lines are parallel, I will use converse, very simple। then similar triangle property क्या है? corresponding angles of similar triangles।
corresponding sides of similar triangles. When triangles are similar, sides are in proportion and angles are equal. बाद में टेस्ट इन सिमिलैरिटी SSS, SAS and AA. Then theorem of areas. When triangles are similar, ratio of area is S1 upon S2 the square. Not only square of corresponding sides, but square of corresponding height, median, angle, bisector. आपको ऐसा भी बोलेगा. Ratio of median is 2:5. What is the ratio of areas of similar triangle? तो आपको square करना है, ये ध्यान में रहे. Yes, किसी को डाउट, किसी ने कुछ पूछा? I will just check. Yes, गार्गी ने आंसर दिया. Thank you गार्गी. उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग ने कुछ सम्स किए, मेरे कुछ दिया. अभी भी I have 15 minutes to go. अभी मैं क्या करने वाला है, ये देखो, ये सबको ध्यान से देखो वापस एक बार. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो मैं इधर बोला है कि मेरे को क्या क्या यूज करना है कि सिमिलर ट्रायंगल और एरिया दिया तो स्पेशल प्रॉपर्टी स्क्वायर का. ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर और एरिया फाइंड आउट करना है. आई विल यूज बेस एंड हाइट प्रॉपर्टी. Parallel lines given, PPT. To prove parallel lines, converse. To prove triangles similar, test. Similar triangles are given and sides are given, then I will use the property. बराबर है? इतना सब किया. Before I proceed, अगर किसी को कुछ बोलना है, राज का डाउट क्लियर हो गया, तक्षक का डाउट क्लियर हो गया. अभी मैं आगे जाएगा और कुछ करेगा. बट बिफोर दैट अगर आपके पास कुछ है बोलने के लिए तो बोल सकते हैं. अभी मैं क्या करेगा, आई हैव वन मोर पीडीएफ स्टूडेंट. मेरे पास और एक पीडीएफ है. वो पीडीएफ अभी मैं थोड़ा शेयर करने वाला है. इधर देखो, इसमें मैंने कुछ टेक्स्ट बुक के कुछ 21 के कुछ ब्रिलियंट ऐसे एमसीक्यूज को पिक किया है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में जितने भी एमसीक्यूज है उसमें से 3-4 गारंटेड आएंगे एज इट इज फॉर श्योर. तो वो सब अच्छे से करो. अभी मैंने इतना 1.5 घंटा मेरी बकबक की आप लोगों ने, तो आपको कुछ तो फायदा हुआ होगा ऐसा मेरे को लगता है. उसके लिए अभी हम लोग कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे. ये मैं शेयर भी करने वाला है. ठीक, मेरा फर्स्ट वाला. ओके, ये देखो, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर आर सिमिलर इन करस्पॉन्डेंस. ये करस्पॉन्डेंस देखो, एबी क्यूआर मतलब एबी का करस्पॉन्डेंस क्यूआर के साथ है, बीसी का पीआर के साथ है और सीए का पीक्यू के साथ है. ये दिया है. आपको क्या क्वेश्चन बोला है, देन ऑर्डर देखना है आपको. पीक्यूआर, पीक्यू और एबी है नहीं है, पीक्यू और एबी नहीं है. ऐसे ऑर्डर देख के आपको बराबर है. बी आंसर इज करेक्ट बिकॉज पीक्यूआर सीएबी. बस 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 सबको समझा. आर्यन पिल्ले करेक्ट करेक्ट. अभी मेरा सेकंड देखो, एंगल डी कॉन्ग्रुएंट. ये एंगल डी क्यू के साथ इक्वल है, एंगल आर ई के साथ इक्वल है, विच इज फॉल्स. प्लीज, आई डोंट वांट ट्रू, मेरे को फॉल्स फाइंड आउट करना है. तो एक एक देख के आपको चेक करना है कि जैसे EFPR, EFPR और DFPQ, DFPQ. ये तो फॉल्स ही है. तो पहला वाला ही आंसर मिला मेरे को, फॉल्स. करेक्ट है. बी इज फॉल्स, तुषार बोल रहे हैं. तो एक मिनट, तो और मेरे पे गलती भी हो सकती है. DE upon PQ, DE upon PQ.
मिस्टेक भी हो सकता है क्योंकि मैंने फटाफट टाइप किया है। तो DE अपॉन PQ इज EF अपॉन QR होना चाहिए, इधर RP है, बराबर है। तो मेरा बी रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन इसमें भी गलती हो सकता है, तो शायद से प्रिंटिंग भी गड़बड़ हो सकता है। यस, ये वाला देखो, थर्ड वाला, एंगल बी और E इक्वल है, एंगल F और C इक्वल है, and it is given that AB is 3DE, मतलब AB is 3DE, मतलब AB 3 टाइम्स है, अगर DE 2 है तो AB 6 है। इसका मतलब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होंगे, लेकिन दो एंगल इक्वल है मतलब ट्रायंगल सिमिलर है, तो सिमिलर है एंड कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो आपको सिलेक्ट करेगा? ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा? ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, सो दिस इज द राइट वन, बराबर है। तो ये सब मैं भेजने वाला है आपको, इसमें भी सॉल्व करेंगे, बाद में मैं आंसर भेजूंगा। अभी मैं 7th वाला करेगा, ये वाला एप्लीकेशन बेस्ड है। A vertical stick 40 meter long casts a shadow of 20 meter. So height उसका shadow. At the same time, a tower of that X height casts 50 meter shadow. तो ये हाइट है, ये उसका शेडो है, ये हाइट है, ये उसका शेडो है। सो रेशियो सेम होगा बिकॉज दे आर सिमिलर। तो मेरा 40 अपॉन 20 विल बी x अपॉन 50। तो आंसर क्या आएगा? हाँ 50, 100, क्या बोल रहे हैं आप लोग? 100, 50 कैसा आएगा? 100 आंसर आएगा। Areas of similar triangle दिया है, find the ratio of corresponding sides. So ratio of area is S1 upon S2 का स्क्वायर। क्या आंसर आएगा? करेक्ट, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो रेशियो ऑफ एरिया दिया है 36 अपॉन 121 इज S1 अपॉन S2 का स्क्वायर, टेक स्क्वायर रूट, आंसर विल बी सी। अगर ए एंगल दिया है, बी एंगल दिया है, सी एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एकदम स्टूपिड क्वेश्चन है, 180 से माइनस करो। ओके, क्लियर, क्लियर। अच्छा, नाउ सम नंबर 10, I want you to solve and tell, send me sum number 10 का आंसर। AED is congruent to ABC और A एंगल सिमिलर है, तो स्टूडेंट्स ABD will be similar to AED will be similar to sorry AED will be similar to, क्या आएगा पहले वो बोलो। AED किसके साथ सिमिलर आएगा वो चैट बॉक्स में भेजो। आर्या करेक्ट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ABC नॉट ACB, आपको AED ACB लिखा तो गलत, AED ABC। अभी रेशियो लिखो, AE अपॉन AB, AD upon AC. Solve and tell me the answer. मेरे को मालूम नहीं, मैंने किया नहीं, आई डोंट नो। बी आंसर आता है, मेजॉरिटी का बी आया, इसके लिए मैं ओके, ग्रेट ग्रेट। ग्रेट ग्रेट मेरा, वेरी गुड। अभी लास्ट वाला सम है, लास्ट वाला सम। The corresponding medians of two similar triangles are 4:7। मैंने बोला था देखो
सिमिलर, वर्ड देखो सिमिलर, मीडियन, तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, 4/7 का स्क्वायर 16:49। समझा समझा। आई होप आई विल स्टॉप, आई विल शेयर दिस स्टूडेंट्स, ये भी मैं शेयर करेगा, इसमें ढेर सारे चैप्टर्स है, बट डोंट सॉल्व ऑल एट ए टाइम, अभी सिर्फ सिमिलैरिटी सॉल्व करो आप। अच्छा, किसी को कुछ दिक्कत है, हैंड रेज किया है, किसी को बोलना है यस, नहीं तो लोअर हैंड करो किसी को, इफ यू वांट टू आस्क एनी पर्टिकुलर डाउट रिलेटेड। अभी मेरे पास 2 सजेशन, रिड्यूस पोर्शन मैंने डाला है बोला, उसके बाद यूट्यूब पे अपलोडिंग, वो मैं अनुज सर और सचिन सर से बात करके आई विल जस्ट गेट बैक टू यू। तो अगर हम लोग ये करेंगे तो फायदा होगा। ओके, अभी किसी को कुछ भी दिक्कत है, पहले में हम लोग ने जो जो किया उसके बारे में, तो यू कैन जस्ट विदाउट हेजिटेशन आप बात कर सकते हैं। आई विल जस्ट स्लाइड वन स्लाइड। आई स्टार्टेड विद द फर्स्ट स्लाइड, कुछ डाउट होगा तो आप जस्ट सेंड मी इन चैट, मैं क्लियर करेगा। ओके, फर्स्ट पूरा मेरा टॉपिक जो भी है, मैं क्या करने वाला है, विवेक सर क्या करने वाला है, उसके बाद सिमिलैरिटी में क्या आपको याद रखना है। नोबडी विल आस्क यू कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। किसी ने पूछा था सर HOT है क्या, मेरे को मालूम नहीं, बट एज पर माय नॉलेज HOT नहीं होगा, ओनली बेसिक कंसर्न। HOT क्या है, अभी वो ICSE बच्चे भी पजल में, हायर ऑर्डर थिंकिंग, ये ऐसे वाले सम होते हैं जिसमें आपको भेजा यूज करना पड़ेगा। अभी मैं आपको ऐसे भेजे वाले 2 सम ट्राई करता हूँ, बिकॉज देयर आर 5 मिनट्स। चलो, आई वांट यू टू सेंड आंसर्स इन चैट बॉक्स। ओके, ये एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, आप भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको आंसर करना है। जो तक्षक बोला उसके लिए मैंने ये ट्राई किया, ये ट्रपेजियम है स्टूडेंट्स, ABCD इज अ ट्रपेजियम। क्वेश्चन बोल रहा है एरिया ट्राइंगल BDC is 9 centimeter square. Area triangle DOC is 3 centimeter square. अच्छा, किसी ने कुछ डाउट पूछा है सर, दिस काइंड्स ऑफ सिटी नहीं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है एरिया ट्राइंगल AOD, चैट बॉक्स में भेजो, मैं आई एम वेटिंग। I want area triangle सोहम शिंदे, क्या बात है, आर्या पवार, मैथिली रॉक, दुई दोषी करेक्ट, निकिता भोये करेक्ट, आविष्कार करेक्ट, वेदांत रावराणे करेक्ट, COD रॉन्ग, तनिष्का इंगळे करेक्ट, जितेश करेक्ट, मैथिली करेक्ट, करेक्ट आंसर इज 6। स्टॉप, डोंट स्टॉप सेंडिंग आंसर्स। अभी ये देखो 6 कैसे, 6 कैसे, जरूरत है आपको समझने की। DCA and DCB, ये दो ट्राइंगल है, they have a common base and they lie between parallel lines, so they have common height, so areas are equal। तो अगर BDC का एरिया 9 है तो ADC का भी एरिया 9 आएगा, तो ये ADC का 9 में से ये 3 गया, तो 9 - 3 तो 6। सबको समझा? अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ट्राइंगल AOD अपॉन एरिया ट्राइंगल COD।
area triangle AOD upon area triangle COD. अरे बाप रे, आया भी आंसर? यस आर्या, करेक्ट. सोहम करेक्ट. Correct, 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 correct. No, not one. Surabhi wrong. Avishkar wrong. Avishkar wrong. Vedant Rao Rane wrong. Shrutika wrong. Shreya Shubra correct. अभी ये देखो, stop, stop, stop. 2/3 wrong. आयुषी यादव wrong. सिनोया wrong. ये देखो, मैं क्या बोल रहा है? आपको थोड़ा भेजा भी यूज करना पड़ेगा ना, इसको तो उसको HOD बोलते हैं. AOD, AOD मतलब ये वाला ट्राइंगल है AOD. COD मतलब ये वाला ट्राइंगल है. प्रॉपर्टी नंबर 3, दो ट्राइंगल का वर्टेक्स कॉमन है तो हाइट इक्वल है, मैंने नोट दिया था. इसमें सिमिलैरिटी का कुछ लेना देना नहीं है. तो रेशियो ऑफ एरिया आएगा बेस अपॉन बेस, दैट इज AO अपॉन CO. बराबर है. अभी एरिया 6 और 3 है, सो AO अपॉन CO आएगा 2:1. नेक्स्ट, what is area triangle AOB? What is area triangle AOB? जो फटाफट बोलेगा उसको, तुषार नाइक. यस बेटर, बराबर है. मेरे को AOB का नो. वेदांत राव राणे रॉन्ग. मैथिली रॉन्ग. सॉरी सॉरी, नहीं रॉन्ग. मैथिली परब रॉन्ग. तनिष्का ही रॉन्ग. वेदांत मालवडे रॉन्ग. अरे छोटी है, छोटी, थोड़ा भेजा यूज करना पड़ेगा. आर्या पवार रॉन्ग. करेक्ट, कौस्तुभ का करेक्ट. वेदांत राव राणे, अभी तक सिर्फ कौस्तुभ भेजा है. निकिता भेजा, करेक्ट. निकिता करेक्ट. रोहाना नॉट करेक्ट. अभी देखो, मैं बोलता हूँ. स्टॉप स्टॉप स्टॉप. मैंने क्या बोला है? मेरे को एरिया ट्राइंगल AOB फाइंड आउट करना है, राइट? अच्छा, ये वाला. और DOC का दिया है 3. तो पहले ये दो ट्राइंगल सिमिलर है. Why they are similar? Alternate and vertically opposite. So area triangle AOB upon area triangle COD is equal to AO upon CO the whole square. Special property. So area triangle AOB upon 3 is 1/2 का square. But 2/1. So. तो 2/1 का स्क्वायर क्या आएगा? 4/1. तो 3 4s are 12. तो आंसर इज 12. समझा? 12 आंसर. 20 10 भी नहीं आएगा. ओके ओके ओके. और ये आने का चांस नहीं है. इतने कॉम्प्लिकेटेड सम्स डोंट एक्सपेक्ट, यू नो. ओके, तो बिफोर वी वाइंड अप आई विल टेल यू कि हम लोग एक अलग ग्रुप बनाने वाले हैं फॉर स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग दिस लेक्चर्स. मैं एक लिंक भेजेगा, उसके ऊपर यू ऐड इन द ग्रुप. उनको ही मैसेज आएंगे. वही ग्रुप में हम लोग PDF शेयर करेंगे, रिकॉर्डिंग शायद से YouTube पे डालेंगे. जैसे तक्षक का सजेशन है, वी विल थिंक ऑन इट. एंड कल के लेक्चर्स में अभी बोलता हूँ, कल के लेक्चर सचिन सर विल टेक, सचिन सर विल बी टेकिंग साइंस. And along with Sachin sir, I will just check who will take the next session, and then we will stop. Just for your information. Yes. So tomorrow Parinam is English lecture होगा. So tomorrow Parinam will take.
Okay, so bye bye. Hope you have enjoyed. अच्छा, send कुछ suggestion होगा तो chat box में भेजो. Yes, otherwise yes. Bye 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 bye. Thank you की जरूरत नहीं है. It's our duty. Bye. चलो.